توجہ ہے؟ عرض کی اللہ دل نہیں لگتا. اللہ رب العزت سے عرض کی مولا کوئی میرا ہم جنس بھیج دے, کوئی میرا ہم جنس بھیج دے. اللہ نے بائی پسلی کو آدم کی چوک کروایا جبرائیل کے ذریعے, جس سے ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ, پیدا فرما دیا. اللہ اکبر. اب حضرت آدم نے بات چیت کرنا چاہیے, ملاقات کرنا چاہیے. ہماری ماں ہے حوا, حسین و جمیل ہیں, خوبصورت ہیں. اللہ اکبر. ملاقات کرنا چاہیے, بات چیت کرنا چاہیے. اللہ نے منع فرما دیا, نہیں آدم بات چیت نہیں کر سکتے, پہلے نکاح ہوگا, پہلے مہر ادا ہوگی, تب جا کے بات چیت ہو سکتی ہے. اب یہاں تھوڑا اسٹاپ کریے, تھوڑا اسٹاپ کریے. آدم جن کی اولاد میں شیش ہے, جن کی اولاد میں زکریا ہے, جن کی اولاد میں یعقوب ہے, جن کی اولاد میں لوط ہے, جن کی اولاد میں ذوالکفل ہے, جن کی اولاد میں یونس ہے, جن کی اولاد میں یحییٰ ہے, جن کی اولاد میں ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, جن کی اولاد میں عیسیٰ روح اللہ, جن کی اولاد میں محمد الرسول اللہ. آدم کی اولاد میں محمد الرسول اللہ بھی جلوہ گر. اور ہماری ماں حضرت حوا کتنی پاکیزہ ہے, کتنی پاکیزہ. جنت میں کوئی گناہ ہو نہیں سکتا, نبی سے کوئی گناہ, لیکن اللہ نے منع فرما دیا آدم بات چیت نہیں کرو گے جب تک نکاح نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارا معاشرہ کتنا ہے کہ ادھر انگیجمنٹ ہوتی ہے, ادھر منگنی ہوتی ہے, ادھر اللہ اکبر کبیرہ معاملہ یہ ہوتا ہے, تو سوچتے ہیں کہ معاذ اللہ اب تو شادی ہو گئی. انگیجمنٹ کو اب تو کر لو بات. بڑی بہن موبائل دے دیتی ہے کہ بات چیت کر لی جائے. بات چیت تو الگ ہے, ملاقات کی بھی اجازت ہو جاتی ہے, ملاقات تو الگ ہے, بائک پہ بھی بٹھا لیا جاتا ہے, بائک تو الگ ہے, پارک میں بھی گھما لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس شادی میں نحوست کیسے نہیں آئے گی, بے برکتی کیسے نہیں ہوگی, اللہ اکبر طلاق کی نوبت کیسے نہیں آئے گی. اس لیے کہ آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے. اللہ اکبر. ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ شوہر سے بات چیت نہیں کر سکتی, لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا. حضرات محترم, تو اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے. اگر کوئی دباؤ بھی ڈالے لڑکا, اللہ اکبر, کہ نہیں میں تو بات چیت کروں گا, میں تو ملاقات کروں گا, میں تو پارک میں گھماؤں گا, نہیں تو رشتہ ٹوٹے, تو ان بچیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی دباؤ بنائے کہ میں تو بات چیت کروں گا, تو ان بہنوں سے کہوں گا رشتہ توڑ لینا. اللہ اکبر. لیکن بات چیت کرنا حرام ہے, بات چیت کرنا منع ہے. مصطفیٰ پر بھروسہ رکھنا, اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی تم کنیز بن کے جب تم زندگی گزارو گی, حضرت فاطمہ کے طریقے کو ادا کرو گی کہ حضرت فاطمہ نے پردے کے ساتھ میں یہ کام کیا, حیا کے ساتھ میں وہ رہی, تو انشاءاللہ جس طریقے سے فاطمہ کے لیے اللہ نے علی کا انتخاب فرمایا تھا, اسی طریقے سے تمہارے لیے بھی اللہ بہتر لڑکے کا انتخاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. لیکن بات چیت کی اجازت, ارے بولو یار, نہیں بول دو, نہیں تو مائک لے کے بھائی آ جاؤں گا. بولیے یا رسول اللہ, بات چیت کی اجازت نہیں ہے. انگیجمنٹ کے بعد نہیں, آپ کو بھی نہیں ہے. حضرات محترم, اس لیے کہ آج معاشرہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے, بہت گڑبڑ ہو رہا ہے. اب آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت آدم جنت میں تھے, کہاں تھے؟ جنت میں, لیکن دل نہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی روم میں اے سی لگا دو, بیڈ لگا دو, فریج لگا دو, ساری چیز لگا دو, لیکن اس گھر میں عورت کے بغیر جنت میں دل نہیں لگا. تو ایک گھر میں سب کچھ سجا دو, اس گھر میں عورت نہ ہو تو دل نہیں لگ سکتا. عورت کو اللہ نے اتنا مبارک بنایا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے درس و عبرت سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے. عورت پیر کی جوتی نہیں ہے, عورت سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ عورت بائی پسلی سے ذوق کی گئی ہے, بائی طرف سے پیدا کی گئی ہے, دل بائی طرف ہوتا ہے. عورت نہ پیر کی جوتی ہے, نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے, عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے, عورت پیار کرنے کی چیز ہے, عورت محبت کرنے کی چیز ہے. مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم آلی, تم میں بہتر میں ہوں اور تم میں سب سے زیادہ وہ بہتر ہے جو اپنے
परिवार के हक में बेहतर है, जो अपने अपने परिवार के हक में बेहतर हो। नमाज अलग है, रोजा अलग है, हज अलग है, ज़कात अलग है, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया परिवार के उसमें बहुत बेहतर रहो आप, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ी बरकतें हासिल होंगी। तो अल्लाह अकबर, थोड़ा और आगे बढ़िए। निकाह, जिनका निकाह नहीं हुआ है अल्लाह उन्हें भी निकाह वाला दिन नसीब फरमाए, ग़ैब से इमदाद फरमाए। हज़रात मोहतरम देखिए निकाह क्या है। अब मुस्तफ़ा का क्या फरमाते हैं, निकाह कीजिए। निकाह कब करें, क्या चीज़ देख लें, क्या चीज़ देख लें? औरत की खूबसूरती देख लें, औरत का माल देख लें, औरत का जमाल देख लें, क्या देखें? सुभाष नगर के गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पर जो अमल नहीं करेगा वो खसारे में रहेगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या चीज़ देखे, हम भी हमारे लिए दर्स और इबरत है। माल देखे, जमाल देखे, कमाल देखे। मुस्तफ़ा ने फरमाया देख तो सब चीज़ सकते हो लेकिन दीनदारी को सबसे ज्यादा। माल मत देखो, दीनदारी देखो। माल मत देखो, लड़के को मालदार मत देखो, दीनदारी देखो। लड़की को मालदार मत देखो, दीनदारी देखो। इसलिए कि माल खत्म हो सकता है, दीनदारी खत्म नहीं होती। माल तो आज इस घर में है, इस घर में है, परसों इस घर में है, ये तो रब की शान है। जिसको चाहे फकीर बना दे, जिसको चाहे बादशाह बना दे। रात को फकीर है, सुबह को बादशाह, सुबह को बादशाह है, रात को फकीर है। लेकिन एक बात ये बता देता हूँ, जो माल देखते हैं आजकल का माशरा यही है कि अल्लाहू अकबर कबीरा, लड़की वाले ये नहीं पूछते लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं, रोजा रखता है या नहीं, दीनदार है या नहीं, बल्कि ये देखते हैं लड़के के मकान कितने हैं, लड़का अल्लाहू अकबर मालदार है या नहीं है। चाहे जुए से लेके आए, सट्टे से लेके आए, दलाली से लेके आए, किसी का मार के लेके आए, नहीं लड़का मालदार है ना तो चलेगा। यही लड़के वाले देखते हैं कि लड़की के मकान 4 हैं या 5 हैं या 10 है, इसलिए कि 10 लाख का माल चाहिए, 20 लाख का माल चाहिए, 50 लाख का माल चाहिए। अरे माल खत्म हो जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम जो सिर्फ माल पर नजर रखते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा, तो माल पर नजर रखना गुनाह है। अल्लाहू अकबर कबीरा कि ये मालदारी मत देखो, दीनदारी देखो। और जिन्हें माल की हवस है कि इस लड़की का माल मिल जाए, मैं इसको तबाह कर दूं, 50 लाख का माल यहाँ से मिले, 20 लाख का माल यहाँ से मिले, मैं उनसे कहूंगा अगर माल की इतनी भूख है, माल की इतनी तड़प है, माल की इतनी प्यास है, तो गरीब नवाज की चौखट पर जाकर बैठ जाओ। गरीब नवाज की चौखट पर इतना माल मिलेगा, इतना माल मिलेगा कि गरीब नवाज रोज लाखों को पाल रहे हैं। ए भिखारी, तुम्हें भी वो पालते हुए नजर आएंगे। इसलिए अल्लाहू अकबर कबीरा, तुम कभी भी मालदारी की बुनियाद पर निकाह मत करना, दीनदारी की बुनियाद बहुत। अब ये कोई जरूरी नहीं है शाहरुख साहब, माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काम है हमारे प्रशासन का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो हज़रात मोहतरम जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और निभाना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाहू अकबर जो मैंने शुरू में अर्ज कर दिया। तो हज़रात बस इंशाअल्लाह तकरीर को हम इख्तिताम पजीर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल अल्लाहू अकबर कबीरा बैठे रहें और हज़रात मोहतरम जल्द से जल्द हम इस प्रोग्राम को फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। मरतबा बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए मालदार, आप देखते हैं कि मालदार मिल जाए, मालदार मिल जाए, मालदार, तवज्जो है, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए मालदारी खत्म होगी। और एक बात सुन लो कि जरूरी नहीं है कि बाप मालदार हो तो हजरत, बाप मालदार हो तो बेटा भी मालदार हो। लेकिन ये जरूरी है बाप दीनदार होगा, माँ दीनदार होगी तो औलाद भी दीनदार पैदा होगी। बेशक हक है। आप कहेंगे मौलाना कोई प्रूफ दो, तो प्रूफ
इसी महीने का ले लो 11 के गो से पक्का। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप दीनदार होता है, माँ दीनदार होती है, तो औलाद भी दीनदार होती है। आपने देखा नहीं कि जब बाप साले होता है, बेटा खैर होता है, तो उस घर में वली बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बाप अबू साले होता है, सुभान अल्लाह, बेशक और माँ उम्मुल खैर होती है, बेशक। तो बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार गौसे आजम सुभान अल्लाह। बाप कितना नेक था। अबू साले धोखे से सेब बे गया था, धोखे से सेब बे गया था। इतना पछतावा, इतना पछतावा, इतना पछतावा। आया कहाँ से, आया कहाँ से, आया कहाँ से? अरे सुधर जा, सुधर। वो से पाक के वाली तो सेब को कह रहा आया कहाँ से? यहाँ तो 1 नंबर का आया तब हजम, 2 नंबर का आया तब हजम, ढका ढका। अरे आ रही है तुम्हें? बस मालदारी चाहिए। उधर तो सेब धोखे से बह गया। नहीं, अल्लाह मुझे कैसे माफ फरमाएगा, कैसे माफी होगी? उल्टे पे रिकान। अल्लाह अकबर। पहुंच गए पाक के मालिक के पास, पूछा पाक के मालिक ओनर कौन है, मालिक कौन है? कहा मालिक के अंदर रोने का उठा लूं। नहीं, नमाज के वक्त ऑटोमेटिक उठ जाएंगे, सुभान अल्लाह, ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। जब तक इंतजार कर रहे कब अजान हो, कब जैसी अजान हुई चंदर फेंक दिए, उठ गए। कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा कौन? कहा मैं हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सेब खा लिया था धोखे से, और हजरत मोहतरम सेब खाते 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 भूख लग रही थी, धोखे से खा लिया। सेब की माफी चाहिए, माफ कर दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। सेब की माफी चाहिए। अल्लाहु अकबर के हजरत मोहतरम बंद कर दे, ले ले 5-7 मिनट। एक मरतबा पाक पढ़ते हैं, उस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर अर्ज करेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा ही हो रहा है। आप सिर्फ 5 मिनट, आप ही की बात है, 5 मिनट तवज्जो रखेंगे तो इस प्रोग्राम, इस बात को आखिर करके इंशाल्लाह फिर सलातो सलाम पढ़ाएंगे और इंतजार करेंगे। तो फिर हजरात बात तवील करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, और आप भी बात को बढ़ाएंगे तो अल्लाहु अकबर गलत है। देखिए, सेब की माफी माफ भी करने के लिए हजरत के पास आ गए। हजरत सेब की माफी माफ कर दीजिए। हजरत ने फरमाया ऐसी माफी माफ नहीं होगी। अल्लाह अकबर कह रहे 12 साल बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। कितने साल? 12 साल बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। एक साथ सेब धोखे से खाया, 12 साल सेब की माफी। अल्लाह अकबर। खिदमत कर रहे, खिदमत कर रहे, खिदमत कर रहे, खिदमत कर रहे। हजरत 12 साल हो गए। 12 साल खिदमत करते 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 कहा हजरत क्लीन चीट चाहिए, क्लीन चीट, अब तो माफ कर दीजिए। हजरत ने फरमाया अभी माफी नहीं होगी, अभी माफी नहीं होगी। का एक शर्त और माननी पड़ेगी। मेरी एक लड़की है अपाहिज, जो न चल सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती, उसके साथ निकाह करना होगा। देखिए, एक सेब धोखे से खाया और इतना तगड़ा मामला। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात का नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह को मुंह दिखाना है, सेब की माफी माफ करानी है। लेकिन हजरात इतना गौर करने के बाद चले गए और कहा कोई बात नहीं, आपकी अपाहिज लड़की से मैं निकाह करूंगा। निकाह हो गया। रूम में पहुंचे, रूम में जैसे गए तो अपाहिज लड़की नहीं बल्कि इतनी हसीन और जमील लड़की के चांद शर्मा, चांद उल्टे पर भाग गए। कहा सुसर साहब इधर आइए। का रूम में अल्लाहु अकबर मेरी ही मनकू है या कोई और बीवी है? और बीवी है। का क्या मतलब? का जल्दी बताइए, एक सेब खाया था तो यहाँ तक पहुँच गया, कोई और मिस्टेक हो गई तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचूंगा। अल्लाहु अकबर मेरी ही बीवी है ना? कहा आपने तो कहा था लंगड़ी है, अंधी है, देख नहीं सकती। कहा बेटे कि तेरा इम्तिहान था, जो मैंने कहा था कि तेरी बेटी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, इसका मतलब ये था जिंदगी हो गई। घर से बाहर उसने कदम नहीं निकाला, आंखों से गैर महरम को नहीं देखा और बुरी बात कभी सुनी नहीं। माँ जब नेक होती है इतनी, और बेटा जब इतना नेक होता है, धोखे से सेब खाता है, जब दोनों का मिलन होता है तब गौसे आजम का जन्म होता है। अल्लाह अकबर। पता चला